Hello students, good morning everybody. I welcome all of you in this online class. Dear ones, all students please come online. We are going to start today's online class and I request you all to mention your feedback and queries in message box to make our teaching and learning more effective. Dear ones, yesterday we started a very basic topic, parts of speech. Parts of speech is basically classification and correct use of the words. शब्दों का सही इस्तेमाल और शब्दों की पहचान हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखते हैं. Yesterday we studied definition of the parts of speech and types of the words. We studied 8 type of the words: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. And today we shall discuss about noun. What do you mean by noun? Noun से आप क्या समझते हैं? And how many types of the nouns are there in English? And how we can use noun in correct way? First of all, meaning of the noun. Noun को जब हम हिंदी में संज्ञा नाम से जानते हैं. इसकी मीनिंग को हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. Noun is basically name of a person, place or thing. Name of a person, किसी व्यक्ति, प्लेस, स्थान और थिंग या किसी वस्तु के नेम को हम नाउन के नाम से जानते हैं. नाउन के अंदर दोनों ही तरह की थिंग्स शामिल होती हैं, चाहे हमें जो सेंसेस से परसीव हो सकती हैं और चाहे वो वस्तुएं जो हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते. इन दोनों टाइप की थिंग्स को हम नाउन में पढ़ते हैं और नाउन किसी भी तरह के नाम के लिए हम यूज करते हैं. तो टाइप्स ऑफ द नाउन, नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं? जैसा कि हम देखते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम. फॉर एग्जाम्पल अशोक, रमेश, रवि, सुनील, all these are names of person and all these are nouns also. Second one, name of place. Name of place, for example Ganganagar, Jaipur, Jodhpur, Delhi, all these are name of the places. In the next, name of things. In things we generally observe all around us, table, chair, bag, all these are things. These are concrete things and abstract things, जिन्हें हम सेंस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो भी हम इसमें काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले स्वीटनेस, ऑनेस्टी, such type of the names are also noun. In the next, types of the noun. नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के नाउन हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम हिंदी के अंदर जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं. कॉमन, जैसा कि इसका टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है, कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल. शेयर्ड बाय ऑल, जिसको सभी शेयर कर सके. कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ दैट कैटेगरी. उस कैटेगरी के प्रत्येक पर्सन
या थिंग के लिए यूज किया जाने वाला नाउन इज नोन एज कॉमन नाउन, उसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से BOY, boy, boy is common noun. Girl, girl is also common noun. King, king is also common noun. Can refer each and every king, प्रत्येक किंग के लिए हम कॉमनली ये वर्ड यूज करते हैं। बट इफ आई से अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, all these are particular name of a king, but to all these name we can use a very common word that is known as king. Queen, boy, girl, these names can be applied to each and every member of that group, so these are known as common noun. We can easily identify common noun. Common noun is not a particular name, it is name given in common to all members of that group. Second type of the noun is proper noun. Proper noun, in proper noun जिसे हम हिंदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ। प्रॉपर का मीनिंग यदि हम इंग्लिश में देखें, प्रॉपर मीन्स वंस ऑन, अपना स्वयं का, नॉट कॉमन, कॉमन नहीं। दिस वन इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी पर्सन और प्लेस का पर्टिकुलर नेम जो होता है उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रवि, रवि इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर boy, boy is common noun while Ravi is proper noun. In the same way as we have discussed, Ashoka, Chandragupta, all these are proper nouns, and if we use a common term to refer all these particular kings, king, then king is common noun, and Chandragupta, Samundragupta, Ashoka, all these are name of particular king, so these are proper noun. प्रॉपर नाउन जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो इंग्लिश के अंदर कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ वन्स ओन, उसका पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। और प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से उसको लिखना शुरू करते हैं। आफ्टर दीज टू टाइप ऑफ द नाउन, थर्ड टाइप ऑफ द नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का इंग्लिश में मतलब होता है ड्रॉन अप। ड्रॉन अप, ड्रॉन अप का मतलब हुआ जो वस्तु किसी दूसरी से निकाली जाती है, ड्रॉन की जाती है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी दूसरे नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से बनती है। भाववाचक जो संज्ञा है इन्हें हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते,
इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं की जा सकती। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जो किसी दूसरी वस्तु से निकाला जाए, ड्रॉन ऑफ किया जाए। तो बेसिकली ये तीन चीजों से ड्रॉन ऑफ होता है, किसी दूसरी चीजों से बनता है, किसी दूसरे वर्ड से ये नाउन बनेगा, मूल वर्ड इसका नहीं होता। तो इसीलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर तीन चीजों से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव के बाद सेकंड ये बनता है वर्ब से, एंड थर्ड वन ये बनता है कॉमन नाउन से। इन तीनों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव से बनेगा वो बनेगा नेम ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव जो होता है उसमें क्वालिटीज को हम मेंशन करते हैं, और जब उस एडजेक्टिव से हम नाउन बनाते हैं तो उस क्वालिटी का नेम हम कर देते हैं, उसको हम नेम दे देते हैं, तो वो क्वालिटी नेम कहलाता है। सेकंड वन, जब हम किसी वर्ब से उस वर्ब से रिलेटेड एक्शन का नेम देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक्शन नेम, नेम ऑफ एक्शन। और थर्ड वन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो कॉमन नाउन होते हैं उनसे ही हम एक अलग नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो वो होती है हमारी स्टेट यानी दशा का नाम। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन चीजों से बना सकते हैं, एडजेक्टिव से, वर्ब से एंड कॉमन नाउन से। एडजेक्टिव से बनेगा तो ये क्वालिटी नेम होगा, वर्ब से बनेगा तो ये एक्शन नेम होगा, और यदि कॉमन नाउन से ये बनेगा तो ये नेम ऑफ स्टेट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये किसी स्टेट, किसी एक्शन या किसी क्वालिटी का नेम होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम इसमें बना के देखते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से जैसे हमने बनाया, हमने एक एडजेक्टिव लिया यहां पे स्वीट। स्वीट एडजेक्टिव है, और स्वीट एडजेक्टिव से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे मीठा, और स्वीट में हम जोड़ देंगे स्वीटनेस, मीठापन। स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया स्वीट एडजेक्टिव से। इसी तरीके से हम और भी एडजेक्टिव यूज करते हुए, फॉर एग्जाम्पल हम ऑनेस्ट वर्ड को लेते हैं, तो ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, एंड ऑनेस्ट में जब हम उसका नेम बनाएंगे तो हम ऑनेस्ट के अंदर जोड़ देंगे वाई, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है वो एक क्वालिटी का नेम बन गया। इन द सेम वे कुछ वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। वर्ब से किस तरह से बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ब लिया मूव। मूव मीन्स हिलना। मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड, मूव्ड होती है, लेकिन जब हम इस मूव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, उस हल जो हिलना डुलना है उसका नाम देंगे, तो हम इसे बनाएंगे मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब हो गया हलचल, किसी भी तरह की गतिविधि। तो मूव से वर्ड बनेगा मूवमेंट।
इसी तरह से यदि हम एक और वर्ब ले, लाफ, लाफ मीन्स हंसना, और हंसी को हम कहते हैं लाफ्टर। तो लाफ्टर वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लाफ वर्ब से। इसी तरीके से हम थर्ड में कुछ कॉमन नाउन की हेल्प से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कॉमन नाउन है बॉय। बॉय वर्ड के अंदर हम यदि ऐड कर दे बॉयहुड, बॉयहुड, तो बॉयहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बॉय एक लड़के के लिए स्टैंड कर रहा था, एक कॉमन नाउन था, और बॉयहुड लड़कपन, बॉयहुड लड़कपन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन चुका है। इसी तरह से यदि हम एक कॉमन नाउन लेते हैं किंग, तो किंग से राजा, और किंग से यदि हम शब्द बनाते हैं किंगडम, राज्य, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हालांकि इन तीनों से ही, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो स्टेट है, तो इन तीनों से हमने किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर वर्ड से बनाना है, इसका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम डेली की एक्सरसाइज, डेली की प्रैक्टिस के द्वारा ये वर्ड्स सीख सकते हैं, और इसी से हमारी वर्ड फैमिली, वोकैबुलरी है, वो भी एनरिच होती है, और हम डेली यूज में आने वाले वर्ड से ही अलग अलग टाइप के वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि एक अपन वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब के अंदर हम बहुत सी बार एक वर्ड पढ़ते हैं ADVICE, एडवाइस। एडवाइस जो है, तो इसकी स्पेलिंग हमें कई बार ये नजर आती है, कई बार हमें ADVICE लिखा मिलता है। तो हम इग्नोरेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को लगभग सेम ही मान लेते हैं। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो जो एडवाइस है ये हमारी वर्ब है, क्रिया है। इस वर्ब से जब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, तो ये बन गया हमारा एडवाइस। तो ये हमारा नाउन है। तो इसके अंदर बहुत डिफरेंस हो गया। तो इन छोटे छोटे वर्ड, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिन वर्ड्स की हेल्प से हम हमारी वोकैबुलरी को भी इनरिच कर सकते हैं, और इंग्लिश के करेक्ट यूजेस हम सीख सकते हैं। मैंने इसी ऐप के अंदर कुछ असाइनमेंट डाउन अपलोड किए हैं, जिसके अंदर 2 एक्सरसाइज है। नियर अबाउट 66 वर्ड्स आर देयर टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज आप सभी उस असाइनमेंट को इसी ऐप के अंदर एक असाइनमेंट टैब का ऑप्शन है, असाइनमेंट ऐप के टैब के अंदर जब जाएंगे, तो वहां से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इस एक्सरसाइज को डाउनलोड करें, और उस डाउनलोड करने के बाद अपने आंसर एक पेज के ऊपर राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद उनकी आप एक पिक ले, पिक लेने के बाद उसे वापस उसी असाइनमेंट टैब में जाके अपलोड कर दें, ताकि मैं उनको चेक कर सकूं, आपकी वोकैबुलरी को देख सकूं कि आप कितना इसमें से जानते हैं। यदि नहीं जानते तो कम से कम उन वर्ड्स को आप जरूर याद रखें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये वर्ड्स सही क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करें। तो हम तीसरा टाइप पढ़ रहे थे नाउन का। तीसरे टाइप में हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो हमारा फोर्थ टाइप आता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नेम से ही स्पष्ट हो रहा है,
कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स। किसी भी चीज कलेक्शन का जो नेम है दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। हम इंग्लिश में अलग अलग तरह के कलेक्शन के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। ये कलेक्शन के नेम्स ही कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम जजेस के कलेक्शन की बात करें तो जजेस के कलेक्शन के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ज्यूरी। इसी तरीके से यदि हम प्लेयर्स के कलेक्शन की बात करें तो प्लेयर्स के कलेक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टीम। शिप्स जो हैं उनका जो कलेक्शन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लीट। पीपल का जो कलेक्शन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्राउड। इसी तरीके से हम और भी विभिन्न प्रकार के कलेक्शन नेम इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं और इन कलेक्शन नेम को ही हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन इसमें एक ग्रामेटिकल क्ल्यू है, एक ग्रामेटिकल रूल इससे जुड़ा है। जब भी आप कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं तो आप कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज मोस्टली करते हैं। लेकिन यदि कोई कलेक्टिव नाउन अपने अलग अलग ग्रुप के सदस्यों का बोध कराता है, इफ एनी कलेक्टिव नाउन शोज इंडिविजुअलिटी देन वी यूज प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक वर्ड से इसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमने लिया ज्यूरी, तो ज्यूरी इज एग्री ऑन दिस टॉपिक। ज्यूरी इज एग्री ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे ज्यूरी है वो एग्री है, ज्यूरी है वो सहमत है। इट मीन पूरी ज्यूरी यहाँ पे एक यूनिट शो हो रही है। और यदि अपन ये लिखें ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक, ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक, सेम ज्यूरी वर्ड के साथ हमने यूज कर दिया आर का, क्योंकि यहां पे हम कह रहे हैं ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे ज्यूरी डिवाइड हो गई। डिवाइड का मतलब हुआ एक से ज्यादा यूनिट, एक से ज्यादा पार्ट्स उसके बन गए। और यदि एक से ज्यादा पार्ट होने का कोई भी सेंस आता है देन वी यूज प्लूरल वर्ब। तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन में ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके ऊपर कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। जब तो ये पूरी यूनिट को सिंगल शो करता है तब हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और जब ये एक से ज्यादा होने का भाव देता है तब हमें इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ द नाउन जो हो दैट इज मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन, व्हाट डू यू मीन बाय मैटीरियल नाउन? मैटीरियल नाउन हिंदी में इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के नेम है, द्रव्यों के नेम हैं जिनसे कोई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। मास का नेम, सब्सटेंसेस का नेम, उसे हम मैटीरियल नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से gold, in the same way if I say glass, paper, all these type of the substances are known as material noun। इन्हें हम material noun के नाम से जानते हैं।
इसका यूज हम इनसे बहुत सी चीजें बनाने के लिए करते हैं। तो दीज आर मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे अपन हिंदी में बोल देते हैं। समटाइम्स दीज मैटेरियल नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन ऑल्सो। कई बार हम इन मैटेरियल नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस बॉटल इज मेड आउट ग्लास, दिस बॉटल इज मेड आउट ग्लास, ये बोतल ग्लास की बनी है। एक अपन ये लिखें, आई हैड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, आई हैड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमने ग्लास वर्ड का यूज किया। ग्लास दोनों में स्पेलिंग भी सेम है और दोनों के अंदर अलग अलग नाउन को शो कर रहा है या सेम नाउन को शो कर रहा है। आप अपने आंसर दीजिए मैसेज के द्वारा कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, क्या इसके अंदर ग्लास वर्ड कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है, और सेकंड के अंदर ये कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है। तो कई बार मैंने कहा कि आप इसे यूज कर सकते हैं एज ए कॉमन नाउन। तो आपका रिस्पॉन्स मैं चेक करता हूं। एनीवन, कोई भी, कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन? वेरी गुड, विकास पारिक का आंसर आ चुका है, फर्स्ट के अंदर मटेरियल नाउन। वेरी गुड, यहां पे एज ए मटेरियल हम इसको यूज कर रहे हैं। दिस बोतल इज मेड आउट ग्लास, ये ग्लास की बनी हुई बोतल है, और सेकंड में हमने यूज किया वर्ड ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास जो है वो कॉमन नेम है किसी चीज का जो हम यूज कर रहे हैं एज ए कॉमन नाउन। वेरी गुड, आप इसी तरह से ऑनलाइन जुड़े हुए अपनी इंटरेक्शन देते रहें ताकि हमारी टीचिंग और लर्निंग कुछ कंफर्टेबल हो सके और कुछ हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। इस टॉपिक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज अपने शुरू कर लेंगे। तब तक हम इस ऐप ऑनलाइन टीचिंग के लिए कंफर्टेबल और हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया 5 टाइप्स ऑफ द नाउन। कॉमन नाउन अच्छे से समझ गए होंगे आप, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। किसी भी टाइप की किसी स्टूडेंट की क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नाउन के नंबर को, कि हम नाउन का जो नंबर है वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं थोड़ा। नाउन नंबर की दृष्टि से भी हम इसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 टाइप के नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के बेसिस भी इसके करते हैं। दे आर नोन एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के नेम से जानते हैं। फर्स्ट वन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड वन अनकाउंटेबल नाउन। ये भी नाउन के 2 टाइप हैं जो हम काउंटिंग बेसिस इसकी डिवीजन करते हैं।
काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन, और जिसे नहीं गिना जा सकता दे आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड into two types: singular on the basis of number, and they may be in plural form. काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल इन दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नेम आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस which can be only in single form, and singular verb is used with uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें हम सिंगुलर स्टैंड्स फॉर सिंगल नाउन, सिंगल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द वर्ड बुक, और इसकी प्लूरल फॉर्म यदि हम देखें तो ये बन जाती है बुक्स। जनरली बाय एडिंग एस और es we can create plural form of the noun, उस नाउन की हम प्लूरल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसमें जिन नाउन के लास्ट के अंदर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस ये आते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं ई एस, उसमें ई एस जोड़ने से उनका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ये बहुत सी जनरल चीजें हैं जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जिन नाउन के लास्ट में एफ और एफ ई होता है उसको हम जनरली एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ के प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। इन द सेम वे यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई आता है तो हम उस वाई को हटा के, यदि वाई से पहले वोवल नहीं है तो हम वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं, तो भी वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबी नाउन के अंदर जब हम वाई हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा बेबीज। इन द सेम वे यदि हम वर्ड लेते हैं स्टोरी, एस टी ओ आर ई वाई, स्टोरी, अब स्टोरी वर्ड मंजिल के लिए जो हम यूज करते हैं इसमें वाई से पहले ई है तो हम इसको आई ई एस में चेंज नहीं करते। वाई से पहले ई नहीं होना चाहिए, इसमें हम जनरली एस जोड़ेंगे, स्टोरीज। तो इसी तरीके से वाई से रिलेटेड ये नियम हो गया। एक एफ या एफ ई से, जैसे वाइफ, वाइफ का प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई को हटा के हम उसमें ऐड कर देंगे वी ई एस। तो ये एक जनरल से पैटर्न है प्लूरल बनाने के। कई बार हम इंटरनल वोवल को चेंज करके भी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जैसे टूथ, टूथ से वर्ड बनेगा टीथ। इन द सेम वे फुट, फीट, तो ये इंटरनल वोवल को चेंज करके भी हम प्लूरल फॉर्म्स बना देते हैं। और कई बार हम अलग वर्ड का भी यूज करते हैं, जैसे चाइल्ड एक वर्ड है, इसकी यदि प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी, चिल्ड्रन। तो हम अलग वर्ड का भी यूज करते हैं। तो ये कुछ पैटर्न है किस तरह से हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का ध्यान रखना है, और आप हमेशा इसका सही यूज ही करें। आप इन छोटी छोटी चीजों को सीखते रहें। अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। उनसे पहले हम कभी भी ए का यूज या एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ए एंड एन दीज आर यूज्ड विद सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कभी भी
ए एन का यूज नहीं करेंगे और न ही इनकी कोई प्लूरल फॉर्म पॉसिबल होती, कोई प्लूरल फॉर्म भी पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए हम इन्हें सिंगुलर वर्ब फॉर्म के साथ यूज करेंगे। जितने भी सब्सटेंसेस नेम हैं, जैसे कि हम लिखें वाटर, मिल्क, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम सिंगुलर वर्ब फॉर्म के साथ यूज करते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो अदर लैंग्वेजेस में अनकाउंटेबल नहीं है, वो काउंटेबल की तरह यूज करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में जब भी यूज करें तो उसे हमें अनकाउंटेबल ही मानना है। तो कई एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत कॉमन कॉमन वर्ड इसमें बताता हूं, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। वर्क, वर्क के बाद SOAP, शॉप, वर्क, शॉप, फर्नीचर, मनी, एडवाइस। ये सभी जो कुछ आप इन लेक्चर के बाद इस ऐप के नोट्स स्टडी मटेरियल जो टैब है, स्टडी मटेरियल टैब से इस लेक्चर के आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना। नोट्स जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये सभी कॉमन जो मिस्टेक वाले नाउन के वर्ड हैं वो सभी उसमें मिल जाएंगे। तो इनकी हेल्प से एक बार आप समझ लीजिए वर्क। अब वर्क के साथ हम कभी भी डायरेक्ट ए और एन का यूज नहीं करते। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो वहां पे अपने एक अलग वर्ड का यूज किए, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, न कि आई हैव ए वर्क, मुझे एक काम है। ऐसा नहीं है, हिंदी में अपने एक काम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम डायरेक्ट इससे पहले ए वर्ड का यूज नहीं करते। सो प्लीज गिव मी ए सॉप, ए सॉप देना रॉन्ग है, हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्लीज गिव मी ए बार ऑफ सॉप, साबुन की एक टिकिया, नॉट सॉप। फर्नीचर, मनी, ये भी हम कभी भी इसे सिंगुलर फॉर्म के लिए ए और एन का यूज नहीं करना और ना ही इनके साथ हमने एस का यूज करना है, यानी इसको प्लूरल नहीं बनाना है। तो इन कॉमन यूज के वर्ड्स का आप ध्यान रखेंगे ताकि आप ऐसे मिस्टेक एग्जाम में ना करें। तो अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक प्रोनाउन के साथ। वन वन करके इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर देंगे। संडे को मे बी आपका एक टेस्ट रहेगा और इसके बाद जो भी लेक्चर रहेंगे मे बी ज्यादा स्टूडेंट्स की जो डिमांड है फोनेटिक्स की है, तो आपको फोनेटिक्स के ऊपर 4 और 5 लेक्चर बहुत अच्छे दिए जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस ऐप के ऊपर इस ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ें ताकि अपने इस मिशन के अंदर कामयाब हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।